Namaskar everyone, this is me Varsha and this is honestly my first video that I'm shooting and I don't know any particular reason why I'm starting this channel or if I'm starting this channel or not या क्या ये video post होगी भी या नहीं होगी I have no idea but I'm just stepping into this new world and I look forward to share with you all guys that how my journey has been and let's just start with the introduction. So my name is Varsha Jangu, I'm from Haryana, Charkhi Dadri, that if by chance you know, and I had completed my 12th last year in 2024 and this is 2025. So I had taken a drop year for my NEET journey. So I had, let's just start with the 10th. I had scored 98% in 10th class with the CBSE board and fortunately I was the district topper of Charkhi Dadri, and secondly in 12th with the medical background, obviously if I had given NEET with the medical background I had scored 94% in 12th, and in 12th I had the subject physics, chemistry, biology, information technology, that is the computer, and English obviously. So this is how my NEET journey started and मैंने एक साल का ड्रॉप लिया था जिसके अंदर मैं ड्रॉप लेने के बाद सिक्कर गई थी, लाइक गुरु कृपा इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था in Sikka, that is particularly maybe the best decision of my life till now, going to Guru Kripa, and I will tell you everything in detail. But let's just all of first reveal my NEET score and my rank and everything. तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने 12th के साथ जो मेरा एग्ज़ाम दिया था नीट का उसके अंदर आई हैड scored 625 out of 720. The NEET is the exam is of 720 and you just get a set of questions. like last year 200 questions थे जिसके अंदर से हमें 180 अटेम्प्ट करने थे और इस साल बाय द चेंजेस 180 ही क्वेश्चन थे और हमें 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे. एंड लास्ट ईयर मेरा जो स्कोर था वो था 625 एंड मेरी रैंक थी 54,000 समथिंग और 53,000 समथिंग. आई डोंट हैव पर्टिकुलर आइडिया अबाउट दैट, सॉरी, बट इन द रेंज 50 to 54, 53 या 54 ही थी. और इस साल जब मैंने एक साल ड्रॉप लिया तो इसके अंदर मेरा स्कोर रहा है 584. आई नो इट्स लेस बट इट्स एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड यू कैन नॉट जस्ट गो फॉर द स्कोर्स, यू जस्ट नीड टू बी कॉम्पिटिटिव इन दैट, क्योंकि जैसा एग्जाम होगा, जैसे बच्चे बैठेंगे, जैसे बच्चों का स्कोर आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक मायने रखती है. तो मेरे 584 स्कोर आने के बाद मेरी ऑल इंडिया रैंक आई है 3003, that is 3003 all India rank, and a general category rank of 1582. okay, I know कि ये बहुत ही अच्छी रैंक नहीं है बट बुरी भी नहीं है, right? because you are going to become a doctor, you are going into MBBS and that's fine because last year हम नहीं जा पाए थे और इस साल हम जा रहे थे, तो it's particularly progress in my life, right? तो इसके बारे में जब हम बात करें तो ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, लाइक 12th के बाद एक ही ड्रॉप था और फर्स्ट था और फॉर्चुनेटली आखिरी भी था. तो मैं सिर्फ इस जर्नी के थ्रू यही कहना चाहूँगी कि आई हैव बीन सीइंग many ups and downs in my 11th and 12th journey, in my drop year journey, or as a med student with no medical background, I have faced many problems like understanding what NEET takes, what it asks from you, what kind of questions, because you need to have this if you want to crack it with 12th. To be very honest and brutally honest, अगर आपको 12th के साथ ही करना है तो आपको एक 11th क्लास से ही एक आपके माइंड में होना चाहिए दिस इज हाउ. भाई बहुत मास्टर माइंड भी होते हैं जो सिर्फ 12th में भी कर लेते हैं या फिर ड्रॉप ईयर में भी कर लेते हैं, बट अगर आपको शुरुआत से एक आइडिया हो नीट होता क्या है, कैसे क्या करना था, क्योंकि 10th तक आई हैड ज़ीरो आइडिया, पर्टिकुलरली ज़ीरो आइडिया कि नीट के अंदर क्या आता है, कितने मार्क्स का होता है, कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं, मुझे ये तक नहीं पता. आई हैड ज़ीरो काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, बट फॉर्चुनेटली धीरे धीरे मैंने सीखी सारी चीज़ें एंड नाउ आई think I have become a person who can guide you in this journey. तो
आई हैव जस्ट मेड दिस चैनल, अगर बनाया भी होगा, क्योंकि आई डोंट नो, आई ऑनेस्टली हैव नो आइडिया कि मैं वीडियो पोस्ट करूँगी या नहीं, बट आज टाइम था तो मैंने ये वीडियो बनाई। तो बस यही है कि मैं यही चाहती हूँ कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं, मैं नहीं चाहती कोई और वो करे और वो अपना 1 साल और ड्रॉप में दे, लाइक जैसे मैंने ये दिया, या फिर कोई ऐसा हो जिसका फर्स्ट ड्रॉप हो, वो अभी भी इसी लूप में फंस गया है कि उसे अब एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा, या ऐसे करके कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, तो मैं यही चाहूँगी कि जस्ट बी क्लियर विद दिस थिंग, जस्ट नो इफ़ यू आर गोइंग इन द राइट प्लेस, अगर आप चाहते भी हैं या नहीं। सो आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू कनेक्ट विद यू पीपल, कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी चाहिए अभी, अगर आपने 10th किया है या फिर आपने किसी कोचिंग में एनरोल कर लिया है, बिकॉज 11th 12th में मैं अलग कोचिंग में थी, एंड आफ्टर 12th आई हैव बीन टू डिफरेंट, लाइक completely different place, completely different people, and the coaching was honestly new to me. For a person like me who has been in the same school from nursery to 12th, it was a very new experience for me to adapt with the changes, but I will tell you how I manage all of these things, and मेरी नीट जर्नी कैसे रही है 11th 12th की और 10th की भी, ऑब्वियसली बिकॉज many of the students have been in 10th also, वो भी शायद ये वीडियो देख रहे हो, और आप लोगों को भी अपना बेस शुरू से ही अच्छा बना के रखना है ताकि आप 11th 12th में अच्छा कर सकें। और बस यही, अगर आप, क्योंकि अभी एक वीडियो में तो मैं सब कुछ ऐसे ऐड करके नहीं बता सकती सारी चीज़ें, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि मेरी 11th की जर्नी 12th की जर्नी इट्स लिटरली कॉम्प्लिकेटेड, ऑनेस्टली वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, बताने के लिए बहुत कुछ है, सो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। आई विल ट्राई कि मैं इसके और वो बनाऊँ, बट मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि अगर इंस्टेंटली आपको कोई डाउट्स हैं, आप 11th में और 12th में आपका ड्रॉप ईयर, आपका फर्स्ट ईयर, अगर आप बीएससी वगैरह के साथ भी आप नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, फील फ्री टू रीच मी। आई नॉट द पर्सन हु इज गोइंग टू नेग्लेक्ट योर कमेंट्स और एनीथिंग। अगर आप कमेंट करेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू ऑल पीपल कि कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी चाहिए, मैं कौन से बैच में थी, कहाँ थी, कैसे क्या था, मैं ट्राई करूँगी कि आपको पूरा खुल के बता सकूँ, ताकि आप एक रॉन्ग डिसीजन पे ना पहुंच जाए, एंड यू डोंट कोस्ट एनी अनदर ईयर और एनी वेस्टेज ऑफ मनी दैट यू विल गिव इन द कोचिंग्स और एनीवेयर। सो दिस इज द थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू with this whole journey, and I just look forward for your support. Thank you everyone, अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी है, I'm truly grateful that you have been sitting with me for this long, if 2x पे भी देखिए, जैसे भी देखिए, but I honestly feel कि I have become capable, और कि अब मैं एक ऐसी जगह पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि I have had experiences of NEET journey, 11th 12th, different coachings, तो I can tell you very openly about this thing कि आपको कहाँ कैसे क्या करना चाहिए। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि कोई और भी ये मिस्टेक्स करे। So just stay happy, stay healthy. That's it with this video. I don't know how to end this video, but all I can do is just bye bye, tata. Thanks for watching this video. Bye. And we'll just I'll try to make another video very soon. If I'll post this video, I'll make another very soon. Thank you everyone. Bye bye. Last try. See you all forward. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आ रहा, मैंने क्या लिखा था।